Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we are going to discuss 10 important questions of CSIR, NET and IIT JAM. Now today we will discuss the 10 question from or 9 question, only 9 question from ordinary differential equation. Now please subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos, and please share to all of your friends who are preparing for CSIR, NET, IIT JAM, GATE or NBHM. And also there are video of Vedic mathematics. You also go in playlist of Vedic mathematics. There we have uploaded some video which is based on Vedic multiplication and square. Now the question number 1, कि consider the ordinary differential equation y dash is equal to f of x. मीन्स हमारे पास एक फंक्शन दिया है या फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है कि y dash x is equal to f of y of x. This is a differential equation. And if f is a even function, the first given is कि f is a even function. And what is definition of even function? The definition of even function is f of minus x is equal to f of x. If you put in place of x, put v minus x, we will get f of x. That means in another word we say that कि f is said to be even function if it is symmetric about a y-axis geometrically. Now we have to check which of the following is again a solution of given differential equation. There are two ways. First way, we take some counter example. By using counter example we eliminate the option, and another is by using simple proof, put in place of y of x minus y minus x, and which satisfy the given differential equation, then this is again a solution of given differential equation. So for example, first we eliminate the option by taking counter example. For example, if we place f of x is equal to a, that is where a is equal to, take suppose a is equal to 1 and y of x is equal to x. मीन्स एक वे तो ये है कि हम काउंटर एग्जाम्पल लेके से डिस्प्रूव कर सकते हैं. तो जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे एंड इन द प्लेस ऑफ y ऑफ x इज इक्वल टू x, द ऑप्शन 2, 3, 4 आर डिस्कार्ड, द ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब ए करेक्ट है तो हम प्रूव भी कर सकते हैं और बाकी सबको डिस्प्रूव भी कर सकते हैं. तो हमारे पास कंडीशन ये है, वी हैव अ कंडीशन कि y डैश x इज इक्वल टू f ऑफ yx. तो देयरफॉर इन प्लेस ऑफ y ऑफ x वी पुट minus y minus x, and if we derivate this we will get derivative of minus y minus x, and if we again derivate minus x, then we will get minus minus is equal to plus, and inside y of minus x, since y is a even function, so therefore y of minus x is equal to y of x, so we will get y dash x, and since y dash x is nothing but f of y of x, so therefore minus y minus x satisfy the given differential equation, so therefore minus y minus x is also a solution. So similarly we can check all the options are incorrect, so therefore the only option A1 is correct and all other options are wrong. Now this question number 233. So this example related to increasing function, decreasing function. So suppose for example we have a y dash is equal to 1 into y minus 1 y minus 2. So we will check this, we will solve this question by using geometrically. The question is that consider the differential ordinary differential equation, that is y dash is equal to 1 into y minus 1 y minus 2. This is given, and which of these statements is true? If we put 0, then y is decreasing, or if we put y of 0 is equal to 1.2, then y is increasing. If y of 0 is equal to 2.5, then y is unbounded or bounded below for
y of 0 is less than 0. So since we have a given कि y dash is equal to y into y minus 1 y minus 2, that means there are three critical points, three extremum point, that is 0, 1 and 2. If we put y of 0, 1, 2, we will get y dash is equal to 0. That means at this point we will get a extremum point, means हमें यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा. और हमें पता है कि अगर सपोज कोई ग्राफ है, अगर ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स देयर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0. अगर कोई ग्राफ डिक्रीज हो रही है, इफ द ग्राफ डिक्रीज वी से दैट कि y dash x is less than 0. And suppose the graph look like this, that is not increasing, not decreasing, that means at this point we will say that कि y dash x is equal to 0. That means at this point we will get a maxima or a minima, here minima and here maxima. So by using this concept we will solve the further question. Now if y dash is less than 0, y dash less than 0 means, suppose for example if we put minus 1, so that is minus 1, and here put minus 1, that is minus 2, and if we put minus 1 minus 2 minus 3, so minus minus plus minus. So therefore if y is less than 0, that means their derivative is less than 0, and we know that if the derivative of function is less than 0, that means function is decreasing. Similarly if we put y is between 0 to 1, then y dash x is greater than 0, that is y is increasing. Similarly y is between 1 to 2, if then we will get y is a decreasing. मीन्स यहाँ पे y की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे. अगर हम y को 0 से नीचे ले रहे हैं तो हमारे पास जो y होगा वो एक डिक्रीजिंग होगा. सिमिलरली जब 0 से 1 के बीच में लेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगी. अगर y 1 से लेकर 2 तक लेंगे तो हमारे पास से डिक्रीजिंग होगा. और y ग्रेटर देन 2 लेंगे तो हर एक वैल्यू पॉजिटिव होगी. इफ एवरी टर्म्स इज पॉजिटिव देन देयर प्रोडक्ट अगेन पॉजिटिव, तो देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग. तो क्लियरली अगर हम ऑप्शन देखें, अब 0.5, 0 पॉइंट किसके बीच में आ रहा है, बिटवीन 0 टू, तो y of 0 is between 0 to 1. For this we will get increasing function, but here say that decreasing, so therefore option A is wrong. So similarly if we take y of 0 is equal to 1.2, that means value of y is 1.2, and for that means y is between 1 to 2, so then y is decreasing, but here say that increasing, so therefore option B is also wrong. Now if y is 2.5, then y is unbounded. That means y is between 1 to 2, and since graph is 2.5 means y is greater than is equal to 2. मीन्स अगर y की वैल्यू 2.5 है तो इसका मतलब y ग्रेटर देन 2 है, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. एंड इफ इंक्रीजिंग फंक्शन है और x की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटिव पुट करेंगे तो वो क्या होगा, इन्फिनिटिव. तो देयरफॉर फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा. तो क्लियरली सी ऑप्शन राइट है. अब नेक्स्ट कह रहा है कि अगर y ऑफ 0 की वैल्यू लेस देन 0 होगी. अब लेस देन 0 के लिए हमारे पास ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है. एंड इफ डिक्रीजिंग है तो कभी भी बाउंडेड बिलो नहीं हो सकता, बट ये कह रहा है कि वो बाउंडेड बिलो होगा, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट बाउंडेड बिलो. तो देयरफॉर द ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शन दैट इज ए बी डी आर रॉन्ग ऑप्शन. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कुछ इसी तरीके से है. द क्वेश्चन नंबर 234 कि लेट y इज अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम r टू r एंड y डैश t इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर t बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो y of t is equal to 1 for some t belongs to real number. Y of t is greater than minus 1 for all t belongs to real number. Y is strictly increasing and y is increasing in 0 to 1 and decreasing 1 to infinity. मीन्स हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का यूज करके हमें चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन की बिहेवियर कैसी होगी. या सॉल्यूशन किसी वैल्यू के लिए फॉर सम वैल्यू t1 y of t1 is equal to 1 और y of t is greater than minus 1 for every t belongs to real number, और y is a strictly increasing function, that is y dash x is greater than, और y is increasing function means y dash x is greater than 0, और y is increasing in 0 to 1 but decreasing in 1 to infinity. तो ये चारों ऑप्शन देखते हैं. तो फिर से हम ग्राफ के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे.
या फिर एक तो ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं या फिर सॉल्व भी करके हम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल y डैश टी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर टी, दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब y डैश टी का मतलब क्या होता है, dy बाय डी टी, y डैश टी इज नथिंग बट dy बाय डी टी। तो बाय यूजिंग दिस वी विल गेट dy बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर डी टू। अब फर्दर इसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ रहा है, फिर उसके बाद इनिशियल कंडीशंस का यूज करके कि 0 पॉइंट पे 0 आ रहा है, तो यहां से हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी 0। तो देयरफॉर log 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, और ये तो 0 हो गया, 2 को ये साइड लेके आ जाएंगे 2t। फर्दर इसमें सॉल्व करके जब हम इसमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद जब इसमें log वगैरह सब अप्लाई करने के बाद हमारे पास वी विल गेट y इज इक्वल टू e रेस टू 2t माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू e रेस टू 2t प्लस 1। मीन्स हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ रही है। तो यहां पे सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है। अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि y ऑफ t1 इज इक्वल टू 1 फॉर सम t1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पुट कर देते हैं कि सपोज इसकी वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 1 होगी। अब क्लियरली अगर 1 पुट करेंगे तो e रेस टू 2t प्लस 1 इज इक्वल टू e रेस टू 2t प्लस 1। बट अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि दोनों फंक्शन e रेस टू 2t e रेस टू 2 इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड भी कर देंगे तो भी वो इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। तो विच इज कॉन्ट्रेडिक्शन, क्योंकि ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगी और इस तरीके का ग्राफ, दिस इज नॉट अ, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते ये पॉइंट, तो देयरफॉर विच इज कॉन्ट्रेडिक्शन। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, दैट इज y ऑफ t1 इज नॉट इज इक्वल टू t1 फॉर एनी t1 बिलोंग्स t1, यानी कि फॉर सम बोल रहा है, यानी कि एक तो पॉइंट होगी, बट हमने प्रूव किया कि t ऑफ t1 इज नॉट इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी t1 बिलोंग्स टू t1, यानी कि किसी भी नंबर के लिए फॉर एनी t1 के लिए वी कैन नॉट रिटर्न एज y ऑफ t1 इज इक्वल टू 1। नाउ द सेकेंड इज कि y ऑफ t इज ग्रेटर देन -1 फॉर एवरी t बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ एज ए t टेंड्स टू इंफिनिटी वी गेट -1, मीन्स अगर हम t की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बीच में जाएगी, -1। मीन्स कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा कि जब फॉर एग्जांपल t की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, -1। और जब t की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे यानी कि प्लस इंफिनिटी, तो ये वैल्यू किसी होगी +1 पे जाएगा। मीन्स कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, यानी कि y की वैल्यू लाई बिटवीन 1 to -1, मीन्स y ऑफ t इज लाई बिटवीन -1 to 1। तो देयरफॉर y ऑफ t इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर एवरी t बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हर t रियल नंबर के लिए y ऑफ t की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर नेक्स्ट ऑप्शन की y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r, तो फॉर ऑप्शन सी एंड डी के लिए कि सिंस y डैश t इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी t बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो देयरफॉर y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि हमारे पास ग्राफ क्या है, e रेस टू 2t माइनस 1 अपॉन e रेस टू 2t प्लस 1। तो क्लियरली दिस इज बाय यूजिंग ग्राफ, और या फिर हम सिंपल प्रूव कर सकते हैं कि इसकी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव डेरिवेटिव है, यानी कि y डैश t इज ग्रेटर देन 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर क्लियरली y डैश t ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो देयरफॉर y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एवरी t बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग। बट क्यों ये कह रहा है कि 0 to 1 के लिए इंक्रीजिंग होगा, बट 1 to इंफिनिटी के लिए डिक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, ओनली ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कंसिडर द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू, कंडीशन ये है कि 0 पुट करने पे y नॉट की वैल्यू आएगी। तो फाइंड करना है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ t, मींस y की वैल्यू निकालनी है। तो किसके बीच में लाइक, मतलब कौन सी पॉइंट होगी, -1 to 0 इसमें बिलोंग करेगा, या -1 to 2 बिलोंग करेगी, या 0 to 2, या फिर 0 to इंफिनिटी। तो यहाँ पे ये सेट है, यानी कि कौन सी पॉइंट बिलोंग ना। हमारे पास गिवन क्या है, कि y डैश t इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। तो एडजस्टमेंट करके, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करके हमें ये मिल रहा है। तो इस तरीके से हम रिटर्न लिख सकते हैं कि y डैश t कैन बी रिटर्न एज -y, y+1, y-2।
तो सिमिलरली एग्जांपल 1 के जैसे अगर हम लेस देन 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर 0 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी। तो जब हम फॉर एग्जांपल एक वैल्यू पुट करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल -2 पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि जो y डैश की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। एंड y डैश ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली -1 से 0 के बीच में डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो y ऑफ 0 पुट, ये इनिशियल कंडीशन है कि y ऑफ 0 पुट करने पे इसकी वैल्यू किसके बीच में बिलोंग कर रही है, 0 to 2। ये हमारे पास गिवन है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल 0 पुट करेंगे तो y0, तो y0 कहां बिलोंग कर रही है, 0 to 2। मतलब ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है। तो अगर इसका यूज करेंगे तो y0 0 2, तो यहां पे 0 2 किस में बिलोंग कर रहा है, इस पॉइंट में। देयरफॉर जो लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी y ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, जिसमें b और c ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन किस में आ रहे हैं, सिर्फ b और c में आ रहे हैं। तो हमारे पास B एंड C ऑप्शन रॉन्ग राइट हो जाएंगे, बाकी A एंड D ऑप्शन आर रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज्यूम दैट कि A इज अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी R। मीन्स हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है, या फिर नॉन निगेटिव कह सकते हैं क्योंकि 0 इंक्लूड है। तो A इज अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम नॉन निगेटिव नंबर टू R, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू y0 विच इज नॉन जीरो। तो ये हमारे पास गिवन है। नाउ वी हैव टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, A, B, C, D। नाउ वी विल चेक वन बाय वन। The given is A is a function going from positive real number to real number, is a continuous function. Y dash x is equal to A of x into y of x. By using this, if you taking LHS, we will get y dash x upon y of x is equal to x. If we integrate over x naught to x, we will get this, and we know that the integration of this is log of y of x. And if you putting the value, we will get y of x is equal to, after solving this, we will get y of x is equal to y of x naught to x a of x dx. हाँ, so this is the solution y of x. Now the first option is कि if 0 to infinity mod a of x dx is infinitive, that means bounded. तो then similarly, तो y, then we have to check the y is bounded or limit extending to infinity y of exist. Now y of x is equal to y of x naught, and if you put 0 in place of x naught, we get y naught, which is non-zero. That is y of x is equal to y naught e raised to 0 to x a of x dx. So since this term is less than infinitive, means that term is less than infinitive, so therefore y of x is less than infinitive, क्योंकि अगर RHS की वैल्यू बाउंडेड है और ये एक नंबर कोई नॉन जीरो नंबर है एंड दिस इज बाउंडेड, तो therefore y of x is exist, or we say that the value of y of x is some finite number. तो therefore y of x is less than infinitive. The less than infinitive का मतलब कि इसकी exist होगी कुछ finite value. The bounded function, that means limit extending to infinity y of x exists. Therefore option 1 is y is bounded. तो yeah, option 1 is bounded. Second option is limit extending to infinity y of x exists. तो exist भी हो रहा है. Now the third option and fourth option, कि if we put limit extending to infinity a of x is equal to 1, then what we will talk about the limit extending to infinity mod y of x is equal to infinity. अगर फॉर एग्जाम्पल इस लिमिट की वैल्यू 1 है तो हम क्या कह सकते हैं कि इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी.
नो इफ यू पुट द लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी a ऑफ x इज इक्वल टू 1, अगर सपोज में पुट करते हैं, अब अगर हम ज्योमेट्रिकली समझें, ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल कि अगर x की वैल्यू अप्रोच करे इन्फिनिटी को, जो ग्राफ होगा वो कहां अप्रोच करेगा 1 को। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम k सच दैट कि जो a ऑफ x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हाफ होगी। अगर कोई वैल्यू 1 को इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो देयरफॉर एक पॉइंट ऐसा होगा जिस स्टेज के बाद a ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो देयर एग्जिस्ट के रियल नंबर सच दैट कि a ऑफ x इज ग्रेटर देन हाफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्रिटर, यानी कि एक तो ऐसी स्टेज होगी कि जिस पॉइंट के बाद अगर मैं कोई भी x लूं तो a ऑफ x इज ग्रेटर देन हाफ होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अब इस k से लेके सपोज 1 तक, अगर मैं k से लेके 1 तक जा रहा हूं, इसकी वैल्यू तो फिक्स है हाफ। तो अगर अब मैं यहां से k से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू लूं तो हर बार इसकी वैल्यू तो हाफ से ग्रेटर देन होगी। तो देयरफॉर जो k टू 1 हाफ dx की जो वैल्यू है, जो a ऑफ x तो हर बार यानी कि इस k स्टेज के बाद, यहां पे सॉरी, तो इस k स्टेज के बाद इसकी वैल्यू तो क्या होगी, ग्रेटर देन हाफ होगी। तो देयरफॉर जो इसकी इंटीग्रेशन होगी वो हमेशा ग्रेटर देन दिस होगी। और अगर कोई भी फंक्शन ग्रेटर देन है किसी नंबर से, यानी कि वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो देयरफॉर k टू इन्फिनिटी a ऑफ x dx इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। नाउ बाय यूजिंग रूल ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज कि अगर a टू b है तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर c इसके बीच में कोई पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है तो a टू c एंड c टू b लिख सकते हैं। तो 0 टू इन्फिनिटी कैसे लिख सकते हैं, 0 टू k एंड k टू इन्फिनिटी, बट क्लियरली दिस इज अप्रोच टू इन्फिनिटी। और यहां पे सिंस a ऑफ x डिफाइन ऑन ए 0 टू k विच इज क्लोज एंड बाउंडेड, तो देयरफॉर कॉम्पैक्ट, तो देयर इज ए रिलेशन कि इफ f is a continuous then compact set map to compact set and connected set map to connected set। तो since it is compact तो therefore their image is compact। तो अगर ये compact है तो जो continuous function होगी उसकी image, the image of continuous function is again compact। compact mean bounded होगा। तो therefore ये जो पूरी a of x जो इंटीग्रेशन होगी कैसी हो जाएगी, बाउंडेड। तो बाउंडेड है मीन्स देयर एग्जिस्ट सम m बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट दिस वैल्यू इज लेस देन m। तो क्लियरली ये वैल्यू कैसी है, इनफाइनाइट है, और ये कैसी, बाउंडेड है। तो यानी कि जो इसका लिमिट होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो देयरफॉर 0 टू इन्फिनिटी a ऑफ x dx अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एंड सिंस वी हैव अ सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि y ऑफ x इज इक्वल टू y नॉट, ये गिवन, बट अगर ये इन्फिनिटिव है तो y ऑफ x की वैल्यू भी इन्फिनिटिव, मॉड y ऑफ x इज इन्फिनिटिव। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सिमिलरली हम ऑप्शन डी को प्रूव कर सकते हैं कि y इज नॉट मोनोटोन। तो ये होमवर्क में रहेगा कि प्रूव कर लेना कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी a ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, तो देन y इज नॉट मोनोटोन। तो ये होमवर्क के लिए आपको चेक करना है। Now the next question, which is very simple, the singular integral of the ODE। तो सिंगुलर के लिए एक तो हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, तो अगर इसमें हम ऑप्शन चेक करके तो भी सिंगुलर पॉइंट चेक कर सकते हैं, या फिर फर्दर सॉल्व करके। अब जैसे गिवन क्या है कि एक्स वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी कि इसे हम p के टर्म्स में, यानी कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्वाड्रेटिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ p, वेयर p इज dy बाय dx और y डैश। इसके टर्म्स में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू रिपीटेड रूट्स होगी, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन कैसे होगी, सिंगुलर सॉल्यूशन होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे और y डैश के प्लेस पे p पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल रहा है, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो p स्क्वायर p एंड ये कांस्टेंट टर्म, तो देयरफॉर ये जो कोएफिशिएंट होगा x स्क्वायर को हम बोल देंगे a, यहाँ पे 2x और y को क्या बोल देंगे b, सिमिलरली ये पूरा टर्म c हो जाएगा।
तो क्लियरली अब वो इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इन पी। तो जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे सॉल्व करने पे हमारे पास ये टर्म्स आ रहे हैं। तो क्लियरली ये जीरो कब होगा, जब बोथ द टर्म्स जीरो होंगे। अब ये दोनों टर्म्स में से एक टर्म से जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो मीन्स एक्स की वैल्यू जीरो, या तो फिर इसे सॉल्व करेंगे दोनों इवन टर्म्स है यानी कि वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकती है। तो यहाँ पे y की वैल्यू प्लस माइनस एक्स होगी। तो देयरफॉर बट x इज इक्वल टू जीरो, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1 को। तो देयरफॉर द ओनली ऑप्शन इज y ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो बट x इज इक्वल टू जीरो डज नॉट सेटिस्फाई, तो गिवन सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। देयरफॉर द ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट, A, B एंड D ऑप्शन आर रॉन्ग। वी कैन डायरेक्टली चेक, पुट कर देंगे x पे, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। बट ये जो सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिलना चाहिए। सिंगुलर सॉल्यूशन मीन्स दो सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब भी इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज y डैश एक्स प्लस p ऑफ x इंटू वाई प्लस q ऑफ x। तो उसके हम सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए हम देखते हैं कि वो किस पॉइंट पे सिंगुलर है, जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चेक करते हैं, यानी कि किस पॉइंट पर डिफाइन नहीं हो रहा है। तो हमें चेक करना है कि कौन सी पॉइंट स्केलर होगी। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन दिया है कि x माइनस वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश प्लस 1 बाय एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो वी कैन डिवाइड बाय x माइनस 1, तो we will get y double dash plus x upon x minus 1 y dash plus 1 upon x into x minus y is equal to 0. If we compare with the standard equation, that is y double dash plus p of x into y dash plus q of x into y is equal to 0. तो this term is p of x, ये टर्म क्या हो जाएगा q of x। तो p ऑफ x किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा है, एक तो लिमिट x इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट नहीं हो रही है और यहाँ पे 0 और 1 एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। मीन्स हमारे पास सिंगुलर पॉइंट क्या हो जाएंगे 0 1। तो देयरफॉर 0 1 आर सिंगुलर पॉइंट, तो हेंस ऑप्शन सी आर करेक्ट। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में कह रहा है कि x इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट, तो रॉन्ग, क्योंकि 0 भी है तो ओनली वर्ड नहीं होता तब तो राइट हो जाता। x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली फिर से आ गया तो ये भी रॉन्ग। बोथ x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 आर सिंगुलर, तो ऑप्शन राइट है। डी में कह रहा है नाइदर, तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दोनों सिंगुलर पॉइंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ k इज अ कांस्टेंट सच दैट एक्स वाई प्लस k इज इक्वल टू, ये सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है इसमें कि हमारे पास गिवन है कि एक्स वाई प्लस माइनस के इज इक्वल टू माइनस के प्लस ई रेस टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर। तो अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट दिस। बट इसके प्लेस पे तो हम फिर से यही पुट कर सकते हैं, इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं x इंटू वाई, और इसे ये साइड लेके आके मतलब एक्स वाई प्लस के, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इन प्लेस ऑफ ये हम ये पुट कर सकते हैं। और अब हमारे पास x डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू गिवन है, द x डिवाइड बाई डी एक्स, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो ये सेटिस्फाई करे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो देयरफॉर इन प्लेस ऑफ x डिवाइड बाई डी एक्स हम पुट कर सकते हैं ये टर्म्स। तो जब इसे यहाँ पे टर्म करेंगे तो बाय सॉल्विंग वी विल गेट k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, कैंसिल वगैरह करके हमारे पास k इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज k इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज वन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के बहुत सारे मेथड है, देयर आर 7 to 8 मेथड और रूल। तो क्लियरली दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन because m, this is coefficient of dx, that is m, and this is the coefficient of dy, that is n, and both the function are homogeneous function of degree 2, 1 1 1 plus 1 2 2 2 1 plus 1, that is m and n are both the function of homogeneous degree 2, so therefore the given differential equation is homogeneous differential equation। और homogeneous differential equation का जो integrating factor होता है 1 upon mx plus ny
प्रोवाइडेड कि mx प्लस एन वाई इज नॉन जीरो। तो सेम टेक्निक का यूज किया यहाँ पे, m की वैल्यू m को x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई y विथ n, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 1 अपॉन माइनस 2x²y, बट y को हम एलिमिनेट कर देते हैं या फिर इग्नोर करेंगे तो हमारे पास 1 अपॉन x²y। तो देयरफॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑप्शन ए सी डी आर इनकरेक्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 239 एंड क्वेश्चन नंबर 240 आर फ्रॉम IIT JAM एंड जो 8 क्वेश्चन स्टार्टिंग के थे वो किसके थे, CSIR नेट के थे। तो नाउ आज के लेक्चर का एंड यही करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे द क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस, द 10 क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, तो ये सारे क्वेश्चन जो कि 241 से लेकर 250 तक है वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।